Good evening, students, and let me welcome you for this fantastic session on cash flow statement and its analysis. We all know that AS3 is the accounting standard which is going to see the cash flow statement and its analysis. And remember that cash flow statement is one of the tool of financial analysis along with comparative balance sheet, along with comparative financial statements, common size financial statements, and followed with ratio analysis. From this, cash flow is financial analysis, and let's go for this. It is absolutely very easy and scoring topic as well, so don't be afraid of this. Just concentrate on the basics there. When the basics are clear, so you will not be having any doubts as statements are concerned. Now, as far as the background is concerned, we all know that financial statements need to be prepared. Two types of financial statements are basically prepared. One is for financial performance, that is profit, loss account, or income statement. So what I'm saying, the financial statements are, number one is profit and loss account, which is also called as इनकम स्टेटमेंट. इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स हम क्या बुलाते हैं? इनकम स्टेटमेंट. एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है जो आपका P&L और या इनकम स्टेटमेंट है. और दूसरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका आप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ वेरियस असेट्स एंड liabilities. It basically shows financial position of the business. So as we know, accounting is language of the business, and whatever accounting wants to communicate, accounting communicate through financial statements. And two financial statements are very important. One is income statement, that is profit and loss account, and second is balance sheet. So income statement shows your financial performance. अगर आप income statement की बात करते हैं तो ये क्या बताता है बेटा? Financial performance, whereas your balance sheet shows financial position. And do remember, students, preparing both these is a mandatory requirement for all companies and publish them on their website. So you can see the first slide there, that statement of cash flows provides information about cash inflows and cash outflows during an accounting period, and it is developed basis of balance sheet and income statement. इसका मतलब है हमें बैलेंस शीट का और P&L का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड एब्सोल्युटली हमें है. वी हैव प्रिपेयर्ड financial statements in terms of income statement or profit and loss account, which shows financial performance, and balance sheet, which shows the financial position. Now, what is the cash flow? Why cash flow is required when we prepare the financial? Why cash flow preparation is necessary? The thing is that cash flow shows the cash position of the business in terms of cash, bank balance, and cash equivalent. Now, we all know that accounting is worldwide prepared on accrual basis. Now, what does mean by accrual basis, students? Accrual basis is nothing but the transactions are recorded whenever they are happening, irrespective of the fact that cash is paid or not, cash is received or not. तो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करने हैं? जैसे होते हैं वैसे रिकॉर्ड करने हैं. कैश है तो कैश पे भी रिकॉर्ड करने हैं, क्रेडिट होते हैं तो क्रेडिट पे भी रिकॉर्ड करने हैं. जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तब उसको रिकॉर्ड करना है. दैट इज व्हाट accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting says, my dear, record the transaction whenever it is happening, no matter it is paid in cash or not or received in cash or not. ये इसको हम accrual बुलाते हैं. तो accrual transaction कैसे रिकॉर्ड करता है? कैश आया तो भी रिकॉर्ड करता है, कैश नहीं आया तो भी रिकॉर्ड करता है, कैश पे किया तो भी रिकॉर्ड करता है, पे नहीं किया तो भी रिकॉर्ड करता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दैट योर बिजनेस परचेस गुड्स वर्थ ₹10 करोड़ ऑन क्रेडिट बेसिस. आपके बिजनेस ने गुड्स या रॉ मटेरियल खरीदा 10 करोड़ का क्रेडिट पे. कब खरीदा? मान लीजिए आज की डेट में, दैट इज ऑन 29 सितंबर 2024. अब इसका पेमेंट आप कब करेंगे बेटा? 3 महीने बाद, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. दिसंबर एंड में आप पेमेंट करेंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा 29 सितंबर इट्स on the basis of accrual. क्योंकि accrual बोलता है record the transaction whenever it is happening, no matter cash is paid or not or cash is received or not. अब देखिए बेटा, इसमें दिक्कत क्या है? accrual में आपने ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन कैश आप कब पे करेंगे? कैश पे करेंगे आप 29 दिसंबर को. तो अगर आपको कैश पोजीशन देखना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, देन कैश इज नॉट इट पेड बाय द बिजनेस. अब बिजनेस से कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है. आउटफ्लो का मतलब क्या है? बिजनेस से कैश बाहर जाना, या तो कैश बाहर जाना या तो बैंक बैलेंस बाहर जाना. लेकिन अभी तक आपने कैश पेमेंट किया क्या? नहीं किया. कब करेंगे? 29 दिसंबर को. व्हाई? बिकॉज गुड्स और रॉ मटेरियल इज परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. नाउ
accounting, that is P&L and balance sheet, record this particular transaction on accrual basis, but cash flow doesn't record this. Why? Because cash flow बोलता है only cash transactions are recorded for payment of cash or receipt of cash. यानी जब तक कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता तब तक कैश फ्लो में ट्रांजैक्शन नहीं आता. सो द टिपिकल थिंग अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब बता दूं मैं आपको, इट इज कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड वेरियस शॉर्ट टर्म equivalents, short term cash equivalents in terms of short term purchases, in terms of investment securities as such. तो इनमें ही फ्लो रिकॉर्ड करता है. यानी कैश फ्लो तब तक नहीं देगा जब तक कैश नहीं है. इसका सीधा साधा मतलब है स्टूडेंट्स, कैश फ्लो नेवर रिकॉर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन, it records only cash transaction, and on that basis it can typically tell you that how much is the cash balance available with the business, how much is the bank balance available with the business, which business can see that whether business is able to pay the short term liabilities, the business is able to pay the dividend or it is going to declare the dividend. क्योंकि जब भी dividend कंपनी को देना है, कंपनी का रूल है, we all know that dividend once declared it should be paid within 30 days from the date of declaration. तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो कंपनी कैश फ्लो देखता है, सिर्फ अक्रूवल का प्रॉफिट होके नहीं चलता. क्योंकि अक्रूवल का प्रॉफिट कैसा है बेटा, कैश में रियलाइज नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत सारे क्रेडिट पे है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट का प्रॉफिट नहीं चलेगा. हमें वहां पे कैश पोजीशन देखनी पड़ती है और कैश पोजीशन के बेसिस पे ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं that whether business is able to pay the dividend or not, whether business is able to pay the short term and long term liabilities or not. Why? Because depending on the cash position, depending on the bank balance available with the business. इसीलिए कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि बाकी अकाउंटिंग जो फॉलो होता है, दैट इज P&L और बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो हम अक्रूवल पे बनाते हैं, लेकिन कैश फ्लो जाता है सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक बैलेंस के इनफ्लो और आउटफ्लो पे. एक्चुअल कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ तो ही कैश फ्लो रिकॉर्ड करता है, एंड इट गिव्स अ क्लियर आइडिया अबाउट द बिजनेस that whether business is able to pay the short term and long term liabilities as well as whether business is able to pay the dividend or not. At the same time further आप अगर जाके देखेंगे तो कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस क्या है. कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस ये भी है that cash flow is divided into 3 types of activity: cash flow from operating activities, cash flow from financing activities and cash flow from investing activities. वही हम डिटेल में देखने वाले हैं. अभी के लिए याद रखिए why cash flow is needed, because accrual basis of accounting requires reporting revenues when earned and expenses when incurred, not when cash is exchanged. This is one of the reason that cash flow is prepared, क्योंकि बाकी जो P&L और आपका बैलेंस शीट है वो आपका कैश पोजीशन नहीं बता पा रहा है, क्योंकि वो अक्रूवल बेसिस पे हमने बनाया है, इसलिए वो एक्चुअल कैश पोजीशन नहीं बता पा रहा है. और बिजनेस cannot decide on the basis of P&L and balance sheet that whether it is able to pay the dividend or not, whether it is able to pay the short term and long term liabilities or not, because it is exactly dependent on cash flow position. Second, explain the reasons for change in cash. Change in cash के रीजन कैश फ्लो ही बताता है कि आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है या निगेटिव है, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है या निगेटिव है, और उसी के साथ इन्वेस्टिंग भी पॉजिटिव है या निगेटिव है. अगली स्लाइड में अपन देखेंगे स्टूडेंट्स की ये ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग क्या है. बड़ा आसान चीज है, डोंट वरी. द एंटायर कैश फ्लो रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू थिंग्स. नंबर 1 लॉस अकाउंट एंड सेकंड इज अ बैलेंस शीट. व्हाई? क्योंकि कैश फ्लो इज द बेसिक टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. क्योंकि कैश फ्लो क्या है? बेसिक टूल ऑफ फाइनेंशियल है, तो ये दोनों को एनालाइज करता है. बट इन टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यही हमें देखना है. तो और थर्ड क्या दिया है बेटा? रिकंसाइल्स नेट इनकम विथ कैश फ्लो. तो जो आपका नेट इनकम है, नेट इनकम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट. तो आपका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज गोइंग टू बी रिकंसाइल्ड विथ योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. अब नेट प्रॉफिट तो बड़ी बढ़िया बात है, कॉल्ड एज पैट, कॉल्ड एज बॉटम लाइन, बराबर है स्टूडेंट्स, कॉल्ड एज अर्निंग आफ्टर टैक्स. देखिए नेट प्रॉफिट के कितने सारे नाम है. Net profit is also called as profit after tax. Net profit is also called as earning after tax. It is also called as bottom line. तो टर्नओवर को हम टॉप लाइन बोलते हैं और नेट प्रॉफिट को बॉटम लाइन बोलते हैं. तो जो कैश फ्लो हम बनाते हैं ये रिकंसिलिएशन का भी काम करता है. रिकंसिलिएशन मतलब देखने का कि डिफरेंसेस कहां पे है.
नेट प्रॉफिट में और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में है। नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज नॉट वन एंड द सेम थिंग माय डियर, ये दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, ये भी हम देखने वाले अगले स्लाइड पे। So this is one of the reason why cash flow is prepared. पहला रीजन क्या है? Accounting follows accrual and hence P&L and balance sheet doesn't give the cash position or cash equivalent position of the business precisely. इसलिए हमें कैश फ्लो बनाना मैंडेटरी है। दूसरा रीजन क्या है? That why the changes in cash is happening, कि कैश इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, और अभी कैश फ्लो जो है नेट कैश, नेट कैश फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, इसमें चेंजेस क्यों है ये भी बताने के लिए इनकैपेबल है P&L एंड बैलेंस शीट, उसलिए हमें कैश फ्लो बनाना पड़ता है। तीसरा रीजन है व्हाई वी प्रिपेयर कैश फ्लो, बिकॉज इट रिकंसाइल्स द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बॉटम लाइन और अर्निंग आफ्टर टैक्स और नेट प्रॉफिट विथ योर कैश फ्रॉम operations or cash flow from operating activities. And the last, the valuation models used in financial analysis, जो भी हम valuation models use करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए, वो भी सारे प्रोजेक्शंस बेस्ड होते हैं आपके फ्यूचर कैश फ्लोज पे। मतलब कैश फ्लो बनाना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर लर्निंग टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब ऐसे कुछ हम पढ़ नहीं सकते कि ये आइटम को यहाँ डालना है, उसको वहां डालना है, बस ये हमारा काम नहीं है। हमें प्लेसमेंट चाहिए अच्छे, तो हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाई अ पर्टिकुलर टॉपिक इज लर्नड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग द टॉपिक। तो कैश फ्लो या बाकी अकाउंटिंग में अलग क्यों है, जैसे P&L बैलेंस शीट और कैश फ्लो में फर्क क्या है, तो वो अक्रूवल है, ये कैश बेसिस है। यहाँ पे चेंजेस इन कैश एक्सप्लेन होता है, यहाँ पे रिकंसिलिएशन बताया जाता है कि आपका नेट प्रॉफिट और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में फर्क क्यों है। एट द सेम टाइम कैश फ्लो आपको बताता है कि आप डिविडेंड पे करने की स्थिति में या नहीं, यू बी एबल टू पे डिविडेंड, सो शुड यू डिक्लेयर इट और नॉट डिक्लेयर इट, बिकॉज योर कैश फ्लो पोजीशन इज वेरी क्लियर। उसी के साथ आपको प्रोजेक्शन करना है फ्यूचर के लिए, hence cash flow is very mandatory and absolutely different from the preparation of profit and loss account and balance sheet, because at the same time we all must remember that cash flow is a tool of financial analysis. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद उसका एनालिसिस होता है कैश फ्लो से, उसका एनालिसिस होता है रेशियो से, कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ये सारी चीजों से उसका एनालिसिस होता है। तो ये हमने याद रखना है। अब प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन में चार बातें बड़ी और बड़ी आसान, 4 पार्ट्स ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। नंबर 1 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें कैश इन हैंड आएगा, कैश एट बैंक आएगा और कैश इक्विवेलेंट आएगा। तो बड़ा ध्यान से सुनिए। अब यहां से प्रिपरेशन का पार्ट चालू होता है। अब देखेंगे कि कैश फ्लो बनाते कैसे है। इसके पहले हमने देखा कि कैश फ्लो बनाते क्यों है, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो बनाओ बोलता है AS3 सेज दैट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्यों बनाते हैं ये हमने जस्ट देखा। तो ये 4 पार्ट हमें शुरुआत करने हैं जब भी कैश फ्लो बनाना है। तो सबसे पहले हमें शुरुआत करने ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस के साथ, या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ। उसके साथ हम जोड़ेंगे और 3 एक्टिविटी, नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट कैश इनफ्लो और नेट इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड फाइनली नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये इसका ढांचा है। मान लीजिए जब भी कैश फ्लो बनाना है तो हमें कैश का पूरा ढांचा मैं आपको यहां पे बताता हूं कि हमें कैसे। ये देखिए, कैश इंक्लूड्स कैश, कैश एट बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैं आपको ढांचा बता रहा था, तो मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता दूं एक सिंपल वाला कि कैश फ्लो हमें कैसे बनाना है। तो हमें शुरुआत करनी है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था, वी आर ऑलवेज स्टार्टिंग विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। ये देखिए, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप बुलाइए तो बेटर रहेगा। इसके साथ हम शुरुआत करेंगे। अब इसमें हम 3 एक्टिविटी जोड़ेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, और ये चारों मिलाने के बाद, मतलब ओपनिंग बैलेंस के साथ ये तीनों एक्टिविटी मिलाने के बाद जो आपका आंसर आएगा, दैट शुड बी योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माय डियर। तो आपका जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहेगा या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस रहेगा, उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। उसमें 3 एक्टिविटी हम जोड़ेंगे, दैट इज कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 3 प्लस ओपनिंग बैलेंस को जोड़ेंगे तो आपका जो क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो आना चाहिए, तो आपका सम सही है, वरना सम सही नहीं है। प्लस आपका आएगा दैट इज कैश और नेट कैश इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो, क्योंकि हमें पता नहीं क्या आने वाला है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको हम प्लस करेंगे। ऑब्वियसली ये फिगर अगर माइनस आया तो उसको ब्रैकेट करेंगे हम, और वो प्लस होने के बजाय ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, हमें बस फिगर को लिखना है, प्लस नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं यहां पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये इन्वेस्टिंग आ गया। और अब ऐड करेंगे नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये चारों जोड़ देने के बाद जो आपका आंसर आना चाहिए माय डियर, दैट शुड बी योर व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये अगर आ गया तो आपका सम सही है। ये मैंने टेस्ट बोला, और ये बैलेंस कहां पे दिया है बेटा, ऑब्वियसली बैलेंस शीट के असेट में दिया है। ओपनिंग के साथ शुरुआत किया, मान लीजिए फिगर्स दिए 2023-24 के, तो 23 के साथ शुरुआत किया और उसके साथ ये तीनों एक्टिविटी जोड़ दी। देखेंगे तीनों एक्टिविटी में क्या क्या आता है। तो ये एक आपका रफ ढांचा है, शॉर्ट ढांचा है कि कैश फ्लो बनाना कैसे है। शुरुआत होगी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ या कैश बैंक बैलेंस के साथ, उस एक्टिविटी आप जोड़ेंगे। हो सकता है कहीं इनफ्लो ज्यादा हो आउटफ्लो से, या हो सकता है कहीं पे आउटफ्लो ज्यादा हो इनफ्लो से। अब देखेंगे बेटा इनफ्लो आउटफ्लो क्या, रफ ढांचा है तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या आएगा, फिर इन्वेस्टिंग में क्या आएगा और फाइनेंसिंग में क्या आएगा। मैं आपको और एक बात बता रहा था, एंड दैट इज आई वाज टेलिंग यू व्हाट डज मीन बाय इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ये जरा ध्यान से देखिए, सो दिस इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। आउटफ्लो मींस कैश इज गोइंग आउट, मतलब इसका माइनस है, एंड इनफ्लो इज कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। तो बड़ा सिंपल चीज है। तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो अपन उसको कैश इनफ्लो बुलाएंगे, कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है तो हम कैश आउटफ्लो बुलाएंगे। जैसे कि if you are paying dividend then it is cash outflow, correct? if you are receiving dividend as a business then it is cash inflow। तो ऐसे सारे एक्टिविटीज में देखने हैं। तो आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हर एक एक्टिविटी में कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है। वैसे बड़ी आसान बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। कैश बिजनेस में आ रहा है तो हम उसको कैश इनफ्लो बुला रहे, कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है तो हम उसको कैश आउटफ्लो बुला रहे। Inflow is obviously denoted by plus and outflow is denoted in accounting and finance by bracket। माइनस साइन नहीं देते अकाउंटिंग फाइनेंस में। अकाउंटिंग फाइनेंस में हम क्या करते हैं बेटा, उसको ब्रैकेट रखते हैं, बिकॉज ब्रैकेट इटसेल्फ शोज दैट इट इज अ नेगेटिव फिगर एंड एट द सेम टाइम इन कैश फ्लो इसका सीधा मतलब है ब्रैकेट लिखना, मतलब इट इज एन आउटफ्लो। जब सम सॉल्व करेंगे तब आपको ये बताऊंगा। तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो आपके ध्यान में आया होगा। अब वन बाय वन एक्टिविटी के बेसिस पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, कोर ऑपरेशन बिजनेस। लेट्स अज्यूम दैट यू आर अ 4-व्हीलर मैन्युफैक्चरर। आप 4-व्हीलर बनाते हैं, तो आपका प्रिंसिपल बिजनेस हुआ 4-व्हीलर बनाना। तो आपका परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, उससे 4-व्हीलर बनाना करना, और फिर रेवेन्यू आएगा 4-व्हीलर बेचना। दिस इज नथिंग बट द प्रिंसिपल एक्टिविटी फॉर अ 4-व्हीलर मैन्युफैक्चरर माय डियर। तो इसमें क्या दिया है देखिए, cash flows related to selling goods and services, that is the principal business of the firm। तो जो भी प्रिंसिपल बिजनेस है वहां पे आपका जो भी खर्च हो रहा है इन टर्म्स ऑफ आउटफ्लो, और जो पैसा आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो हम बुलाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, so that is coming cash flow related to selling goods and services, that is the principal firm। तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप गुड्स बेच रहे, सर्विसेज बेच रहे, जिससे आप बेसिकली बिजनेस रिलेट करते हैं, जिसके लिए आपने बिजनेस चालू किया है। तो दैट इज कैश इनफ्लो। द कैश इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड अदर इवेंट्स दैट एंटर इनटू द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स।
थ्रू सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज परफॉर्म्ड, कस्टमर ने आपको पैसा पे किया, ऑब्वियसली डेटर ने पैसा पे किया, अकाउंट्स रिसीवेबल ने पैसा पे किया, या आपका कैश ट्रांजैक्शन हुआ, तो दैट कैश इज नथिंग बट कैश इनफ्लो। उसी के साथ योर कैश पेमेंट टू द सप्लायर फॉर परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड for which you are doing the business, so cash payment to supplier or employees in terms of salaries, wages, their welfare expenses and so on, so that is nothing but cash outflow। पहला कैश इनफ्लो है बेटा, क्योंकि आप गुड्स बेच रहे और कस्टमर आपको पैसा दे रहा है। दूसरा सॉरी पहला कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो हो रहा है पहले इसमें, तो दिस कैश इनफ्लो प्लस दिस इज आउटफ्लो आइडिया, क्योंकि यहाँ पे आप पेमेंट कर रहे और ये भी आपके लिए आउटफ्लो है। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। सो दिस इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ऑपरेशंस में क्या क्या आता है? कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस without which a product cannot be produced and without which a product cannot be further sold into the market। जब तक आप प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, तो बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा सप्लायर को, तो दैट इज कैश आउटफ्लो। कौन बनाएगा? बनाएंगे तो लेबर को आपको सैलरी देना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम यू नीड टू इनकर सर्टेन एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, नेट चार्जेस, ये सारी चीजें बिजनेस में इसेंशियल है। ऑल दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर आउटफ्लो एंड एट द सेम टाइम कैश पेमेंट फॉर एम्प्लॉइज, उसी के पेमेंट करेंगे टैक्सेस और अदर एक्सपेंसेस में। तो ये सारा यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, आप देख सकते हैं। सो दिस इज व्हाट ये इनफ्लो है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और ये यहाँ पे भी इनफ्लो आउटफ्लो का मैंने बाइफरकेशन आपको करके बताया। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनफ्लो एंड व्हाट इज आउटफ्लो। बिजनेस में कैश आ रहा है तो इनफ्लो, बिजनेस के बाहर जा रहा है तो आउटफ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? सीधा सीधा याद रखिए बेटा, इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। आपका P&L या इनकम स्टेटमेंट इज द होल एंड सोल ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैलेंस शीट का कोई आइटम इधर आने का चांस बड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे P&L के आइटम आते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्टिविटी बिजनेस का क्या है? प्रोडक्शन एंड सेल्स। तो ये दोनों चीजें आएंगी, इससे रिलेटेड चीजें हम कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में कैटेगराइज करेंगे। और दो मेथड से यहाँ पे कैश फ्लो हम कैलकुलेट करेंगे, वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दैट वी आर गोइंग टू सी व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स। अभी बेसिक ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है। सो व्हाट इज कमिंग अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एज फार कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज कंसर्न। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं तो क्या है, तो मैं आपको यहां पे सिंपल बताना चाहूंगा बेटा, दिस विथ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बैलेंस शीट के असेट से बेसिकली रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? बैलेंस शीट असेट, दैट टू लॉन्ग टर्म असेट्स माय डियर। ये बैलेंस शीट के असेट से रिलेट है, और कौन से असेट से रिलेट कर रहा है? लॉन्ग टर्म असेट से रिलेट कर रहा है। एक तो लॉन्ग टर्म असेट्स और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सीधा सीधा मतलब ये है कि आप या तो फिक्स्ड असेट खरीदेंगे या तो बेचेंगे, या तो आप इन्वेस्टमेंट परचेस करेंगे, मतलब किसी और कंपनी के शेयर खरीदेंगे, कहीं पे आप गोल्ड खरीदेंगे। बिकॉज बीइंग बिजनेस दीज आर ऑल वेरी गुड प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट, कि आपने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे, आपको उसमें अच्छा कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ, या उस पर आपको काफी अच्छा डिविडेंड मिला, है ना, इसलिए तो शेयर खरीदे जाते हैं। am I correct? So here you are purchasing long term assets and long term investment। तो जब भी आप परचेस कर रहे हैं तो आपके लिए क्या हुआ बेटा? कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? यस करेक्ट, दैट इज कैश आउटफ्लो, क्योंकि आप परचेस कर रहे हैं मतलब आप पे कर रहे हैं। So if you are purchasing any of the fixed asset like land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car, it is nothing but an example of outflow of cash। अब यही आप बेचेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद, या ये आपके काम में नहीं है, and that is not at all going to be useful for cash inflow of land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car, and sale of any other company's shares or gold which you have purchased as an investment option। तो यहाँ पर मोटी क्या आएगा? Purchase of long term assets and purchase of long term investments, that is your outflow, and sale of long term fixed assets and sale of long term investment, that is your inflow। यही आपको यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप। acquiring or disposing of securities that are not cash equivalents, ऐसे securities मतलब ऐसे shares, bonds, gold जो आपने या तो इन्वेस्टमेंट बोल के खरीदा है और अभी आपने बेचा है, तो जब खरीदेंगे तो आउटफ्लो, बेचेंगे तो इनफ्लो।
खरीदेंगे तो बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा, बेचेंगे तो बेच के पैसा बिजनेस रिसीव करेगा। दैट इज हाउ ये इनफ्लो आउटफ्लो दोनों एक साथ दिया है। दूसरा, कैश फ्लो रिलेटेड टू एक्विजिशन और सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को ही हम क्या बुलाते हैं बेटा? फिक्स्ड असेट्स। उसमें दो चीजें, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। यूजुअली टेंजिबल ही हम ज्यादा खरीदते हैं, इनटेंजिबल कभी कभार बिजनेस जब एक्वायर करता है किसी और का बिजनेस, तब हम गुडविल परचेस करते हैं सामने वाले की। तो दैट इज अनदर एग्जांपल, बट अगेन एब्सोल्युटली दैट इज नथिंग बट कैश आउटफ्लो, क्योंकि आपने कोई और बिजनेस खरीदा, उसके गुडविल के साथ खरीदा और उसके गुडविल के लिए पे किया, तो वो भी आपका कैश आउटफ्लो है। कैश फ्लो रिलेटेड टू सेल ऑफ assets. Next, lending money or collecting on loans, examples of investing activity. आपने किसको लोन दिया है? You have given a loan. So business लोन दे सकता है क्या? तो दे सकता है। आपने आपके सब्सिडरी कंपनीज को लोन दिया या किसी अदर कंपनीज को लोन दिया, मेरे ख्याल से ये बैंकिंग कंपनी में ज्यादा देखना मिलेगा, क्योंकि उनका बेसिक बिजनेस ही लोन देना है। बट वहां पे लोन देना, दैट विल नॉट कम अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दैट विल कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि बैंक का बिजनेस ही है लोन देना और लोन लेना, है ना? लोन लेना मतलब डिपॉजिट लेना कस्टमर से और सामने वाले को लोन देना। तो यहां पे याद रखिए, अगर बिजनेस अपने सब्सिडरी को लोन देता है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्युटली कैश आउटफ्लो, कि आपने लोन दिया है। आप बोलेंगे हमने लोन लिया, तो देन दैट इज नॉट पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माय डियर, दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, मोटा मोटी आपने क्या याद रखना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सीधा साधा मतलब है व्हेन बिजनेस इज आइदर परचेसिंग और सेलिंग लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। यानी जब भी आप कोई लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार या तो खरीदते हैं या तो बेचते हैं, उसी तरह से किसी और कंपनी के शेयर, बॉन्ड्स, गोल्ड या तो आप खरीदते हैं बेचते हैं, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माय डियर। एक आएगा इनफ्लो में, दूसरा आएगा आउटफ्लो में। मतलब जब आप बेचेंगे इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड असेट तो आपको पैसा मिलेगा, तो दैट इज इनफ्लो, और जब आप खरीदेंगे देन दैट इज आउटफ्लो। तो दैट इज वेरी सिंपल। अब देखिए यहां पे और थोड़ा सा इलाबरेट करके दिया है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स दैट आर नॉट हेल्ड फॉर द रेगुलर ट्रेडिंग पर्पसेस सच एज सेल ऑफ बिल्डिंग, marketable security such as trading and available for sale securities and investment। मैंने बोला आपको कि क्या याद रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल असेट्स, नॉन करंट असेट्स, कैश पेमेंट टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड टेंजिबल असेट एंड अदर लॉन्ग टर्म असेट्स। सो दिस इज कैश आउटफ्लो माय डियर। क्यों? कि एक्वायर करने के लिए ऑब्वियसली आप कैश पे करेंगे, ये प्लस है। क्योंकि आपको रिसीव हुआ है from sale of assets, from current assets, tangible assets, fixed assets, cash received from sale of and paid for purchase of derivative instrument। आपने कैश रिसीव किया डेरिवेटिव बेच के, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने बेचा तो ऑब्वियसली पैसा मिलेगा। आपने खरीदा तो ये आउटफ्लो है, तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों कंबाइन दिया है यहाँ पे। लोन्स एक्सटेंडेड टू अदर कंपनीज एंड कलेक्शन ऑफ सच लोन्स। आप लोन देंगे और लोन वापस आएगा, लोन वापस आएगा तो इनफ्लो है, लोन देंगे तो आउटफ्लो है। लोन इज यू कैन से दैट समथिंग एक्सेप्शनल। लोन लेना या यहाँ पे लोन्स वापस लेना ये एक्सेप्शनल एक्टिविटी है, सारे बिजनेस ये नहीं करते, तो ये सम हाउ एक्सेप्शनल, इस पे आप अभी ध्यान ना देंगे तो भी चल जाएगा, है ना? तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना पड़ा। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा? इन सिंपल वर्ड्स दैट इज परचेस और एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स, fixed assets, non-current assets, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car, and at the same time long-term investment in terms of shares, bonds and golds. So that will be part and parcel of your investing activity। और ये दोनों का डिफरेंस निकालना है कि इनफ्लो अगर ज्यादा है आउटफ्लो, तो then that is called as net cash inflow। मान लीजिए आपका सेल हुआ है फिक्स्ड असेट्स का और इन्वेस्टमेंट का 10 करोड़ का, और आपका परचेस हुआ है 7 करोड़ का, तो ऑब्वियसली इनफ्लो ज्यादा है, तो 10 करोड़ माइनस 7 करोड़ बैलेंस तो पॉजिटिव आएगा, तो 3 करोड़ आपको इनफ्लो में लिखना पड़ेगा। और यही मान लीजिए आपका इनफ्लो है 4 करोड़ और आउटफ्लो है 8 करोड़, देन नाउ नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, सो दैट वे अराउंड इट इज कैलकुलेटेड माय डियर। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है? फ्रॉम वेयर मनी इज रेज्ड बाय द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। बिजनेस पैसा कहां से रेज कर रहा है? ओन्ड कैपिटल में और बोरोड कैपिटल में।
सो बोरोइंग फ्रॉम क्रेडिटर्स, रीपेइंग द प्रिंसिपल, मतलब आपने बैंक से लोन लिया और उनको आपने ओनर से पैसा उठाया इन टर्म्स ऑफ ओन्ड कैपिटल, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज नथिंग बट अगेन इन टर्म्स ऑफ इनफ्लो, क्योंकि आपने मनी रेज किया, पैसा रेज किया. प्रोवाइडिंग ओनर्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस एक्टिविटी वन बाय वन. कैश रिसीव्ड फ्रॉम इश्यूइंग शेयर कैपिटल, शेयर इश्यू किए, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पैसा मिला, ये आया या गया पैसा, यस यहाँ तो पैसा आ रहा है, सो दिस इज पॉजिटिव. कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यूइंग बॉन्ड्स, लोन्स, नोट्स, मॉर्गेज एंड अदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. आपको कैश मिला, आपने बॉन्ड इश्यू किए, आपने लोन लिया, आपने नोट इश्यू किए, मॉर्गेज दिया, और नीचे आप कैश पेमेंट कर रहे हो बेटा, कि ऑब्वियसली ये लिया है तो वापस भी देना पड़ेगा कभी ना कभी. इसमें दूसरा कैपिटल नहीं देते, यूजुअली इक्विटी कैपिटल रीपे नहीं किया जाता, उसको परमानेंट कैपिटल बुलाया जाता है, बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल इज कॉल्ड एज परमानेंट कैपिटल ऑफ द बिजनेस as it needed to be paid only when business is going to be liquidated or winding up में चला जाता है बिजनेस. तब तक आपको पैसा चाहिए तो आप सेकेंडरी मार्केट दैट इज बीएसई शेयर आपके सकते हैं और आपका पैसा रिकवर कर सकते हैं. और ये देखिए, ये सीधा सीधा आउटफ्लो है बेटा, कैश पेमेंट है, ये भी कैश पेमेंट है और ये भी कैश पेमेंट है. कैश पेमेंट टू शेयर होल्डर्स टू रिडीम एग्जिस्टिंग शेयर्स और ट्रेजरी स्टॉक, कैश पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड अदर बोरोइंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हियर, एंड कैश पेमेंट टू शेयर होल्डर एज डिविडेंड. अगर आपने अभी ऑब्वियसली शेयर उठाए या आपने शेयर उठा के पैसा लिया शेयर इश्यू करके, तो आपको डिविडेंड भी देना पड़ेगा. सो डिविडेंड पेड इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जबकि डिविडेंड रिसीव्ड इज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कैसे? क्योंकि शेयर आपने किसी और कंपनी के खरीदे, इन्वेस्टमेंट बोल के, आपको उस पर डिविडेंड मिल रहा है बेटा जी, एंड दैट इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. जबकि आप डिविडेंड जब पे करते हैं, मतलब आपकी कंपनी ने शेयर इश्यू की है, इक्विटी या प्रेफरेंस, और उस पे आप डिविडेंड दे रहे, एंड दैट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो दैट इज व्हाट ये हाउ कैश फ्लोज एंड अकाउंटिंग पीरियड. तो ये इनफ्लो और आउटफ्लो का परफेक्ट एग्जांपल यहां पे उन्होंने दिया है. इनफ्लोज में देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी और आउटफ्लोज भी वहीं पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो लेस आउटफ्लोज, चेंज इन कैश फॉर द अकाउंटिंग पीरियड. अब ये चेंज इन कैश या तो कैश नेट कैश इनफ्लो रहेगा या नेट कैश आउटफ्लो रहेगा. जैसे मैंने आपको बोला कि अगर इनफ्लो ज्यादा है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, देन इट इज कॉल्ड एज नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अगर दूसरी एक्टिविटी में, इन्वेस्टिंग में, मान लीजिए कैश आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से, देन दैट इज नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड उसके हिसाब से हमें लिखना है. और अभी देखिए कंपोनेंट में क्या क्या है, बड़ा आसानी से समझाया है यहाँ पे. कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑपरेशंस में आएगा, कैश पे गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस, एडवर्टाइजिंग एंड सो ऑन, ये सारा आएगा कैश पेड में. और ये दोनों का जो भी डिफरेंस है, अगर पॉजिटिव है तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, निगेटिव है तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला अभी इन्वेस्टिंग में कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म असेट्स. जैसे मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टिंग में सिर्फ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड असेट्स या लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टिंग में नॉन करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन्हीं को कंसीडर, इनको या तो खरीदना है या तो बेचना है. तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल एंड असेट्स, कैश पेड टू परचेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉन करंट असेट्स, ये माइनस करेंगे. अगर पॉजिटिव आया तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, निगेटिव आया तो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. उसी तरह से फाइनेंसिंग दिया बेटा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ डेट और स्टॉक्स, शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, प्लस माइनस क्या आएगा, कैश पेड फॉर डिविडेंड एंड एनी रीपेमेंट ऑफ लोन, बॉन्ड्स और एनी टाइप ऑफ शेयर्स आर रिडीम्ड, देन दैट इज आउटफ्लो फॉर द बिजनेस. फाइनली फिर से इसका आंसर प्लस और माइनस आएगा. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये चार्ट जरा ध्यान से देखिए आप, बड़ा क्लियर कट दिया है कि क्या इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, और दोनों में का डिफरेंस हमें लेना है. तो देखिए नीचे भी बताया कि कैश इनफ्लो है कैश आउटफ्लो है, और फाइनली उन्होंने बताया नेट चेंज इन कैश फॉर द पीरियड. ये तीनों का मिला के नेट चेंज इन कैश क्या है. मान लीजिए आपका प्लस मतलब इज मोर देन आउटफ्लो, और ये
पे प्लस 4 लाख आया, देखिए यहां पे लिखता हूं मैं, ये प्लस 4 लाख आया, मान लीजिए ये है माइनस 12 लाख, और आखिरी मान लीजिए दिस इज 20 लाख पॉजिटिव, मतलब इसमें इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो। आप कोई भी इमेजिनरी फिगर्स यहां पे ले सकते हैं, ऑब्वियसली एज ऑफ नाउ फॉर कैलकुलेशन, तो यहां पे मैं लेता हूं, लेट्स से दैट इट इज 16 लाख एंड दिस इज 12 लाख, तो 16 लाख पॉजिटिव है क्योंकि ये इनफ्लो है, 12 लाख ये आउटफ्लो है, 4 लाख पॉजिटिव आया। अब ये 12 लाख है तो मान लीजिए दिस इज 40 लाख एंड दिस इज 52 लाख, बट दिस इज आउटफ्लो, है ना, ये आउटफ्लो है। अब ये आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो, इसलिए 52 लाख माइनस 40 लाख, ये 12 लाख आएगा। और अभी यहाँ पे ये 20 लाख आया तो मान लीजिए ये 40 लाख है और ये 20 लाख है, तो 40 में से 20 गए, 20 बचे। अब ये तीनों का अगर चेंज इन कैश निकालना है तो दो पॉजिटिव है, 4 लाख और 20 लाख, 4 और 20 हो गए 24, उसमें माइनस 12 किए तो आपका नेट चेंज इन कैश सकता है डिपेंडिंग ऑन फिगर यूनिट है। So this way the calculations are supposed to be done, my dear. तो बड़ा आसान है, बस याद रखना है कि ऑपरेटिंग में क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा और इन्वेस्टिंग में क्या आएगा। तो इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म असेट्स, दैट इज नॉन करंट असेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अलोंग विथ सेल, सेल किया तो इनफ्लो है, परचेस किया तो आउटफ्लो है। फाइनेंसिंग में अगर आपने कैपिटल रेज किया, ओन्ड कैपिटल हो या बोरोड कैपिटल हो, ओन्ड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और बोरोड मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, ये अगर आप इश्यू कर, ये अगर आप लेते हैं तो इनफ्लो है, ये आप रीपे करते हैं तो आउटफ्लो है। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है। और ऑपरेशंस का मतलब ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि आपको कस्टमर से पैसा मिला और आपने सप्लायर को पैसा पे किया अलॉन्ग विथ योर एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ वेजेस, सैलरीज, एडवर्टाइजिंग, तो ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो में आपको लिखना है और नेट चेंज इन कैश निकालना है। तो ये बड़ा सटीक है, आप समझ सकते हैं इसको और आसानी से देख सकते हैं, तो नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। अभी देखिए दो मेथड्स है, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट, कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालना है। तो डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड यहाँ पे, the two methods yield identical figures for net cash flow from operating activities because the underlying accounting concepts are same। तो आप डायरेक्ट कीजिए या इनडायरेक्ट कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। अभी देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में क्या है। ये देखिए, दिस इज द डायरेक्ट मेथड। व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड, अदर ऑपरेटिंग कैश रिसीट, ये सारे पॉजिटिव है। बराबर है क्या बेटा? बताइए, पैसा आया ना, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इज कैश इनफ्लो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज कैश इनफ्लो, अदर ऑपरेटिंग कैश रिसीट इज कैश इनफ्लो। नीचे के कैश आउटफ्लो है क्योंकि आपने सप्लायर और एम्प्लॉय को इंटरेस्ट पे किया, टैक्स पे किया और अदर ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स किए, जैसे कि अदर ऑपरेटिंग कैश पेमेंट मतलब सारी चीजें आएगी, दैट इज परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड व्हाट नॉट, एवरीथिंग विल कम हियर। सो दिस इज डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला इन्होंने दिया है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेथड फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो कैश रिसीट फ्रॉम, आपको पैसा कहां से आया? सेल ऑफ गुड्स से आया, कमीशन एंड फीस से आया, इंटरेस्ट रिसीव्ड आया, तो ये आपका कैश इनफ्लो है। उसके साथ कैश फ्लो क्या क्या है? पेमेंट फॉर परचेसेस, पेमेंट टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेमेंट और डायरेक्ट टैक्स। अब ये दोनों का प्लस माइनस निकालेंगे, उसको अगर आपका प्लस आ रहा है तो नेट कैश इनफ्लो बोलेंगे, माइनस आ रहा है तो नेट कैश आउटफ्लो बोलेंगे। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड फॉर्मेट माय डियर, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। अब कौन सा फॉर्मेट यूज करना है दैट वी आर गोइंग टू सी इमीडिएटली, लेकिन बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। फॉर्मेट अपन डायरेक्ट करते हैं या इनडायरेक्ट यूज करते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज आंसर इज कमिंग वन एंड द सेम। ये देखिए, ये मेथड ज्यादा एप्लीकेबल होती है, ये डायरेक्ट वाली है आपके सामने, इनडायरेक्ट वाली ज्यादा एप्लीकेबल होती है। रीजन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन हमें नेट प्रॉफिट दिया जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया जाता है, बॉटम लाइन दिया जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया जाता है, उससे हमें उल्टा जाना पड़ता है। सो नेट इनकम और लॉस इज एडजस्टेड फॉर अक्रूवल्स। अक्रूवल क्या है? थोड़ी देर पहले बोला था मैंने, सच एज अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेएबल फॉर नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड सच एज डिप्रीशिएशन,
रिकंसिलिएशन ऑफ द अक्रूवल बेस्ड एंड कैश बेस्ड अकाउंटिंग। तो यहाँ पे पूरा हमें रिकंसिलिएशन करना है, नेट प्रॉफिट को उल्टा घुमाना है और हमें आना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके लिए क्या क्या एडजस्ट करने पड़ेंगे, सारे डिफरल, सारे अक्रूवल पेमेंट, नॉन कैश आइटम्स जैसे कि डिप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन। आप बोलेंगे डिप्रीशिएशन क्यों नॉन कैश है, आपने तो पढ़ा होगा डिप्रीशिएशन इज नथिंग बट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। लेकिन स्टूडेंट्स जरा मुझे एक चीज बताइए, जैसे आप एडवर्टाइजिंग पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, सैलरीज पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, आपने कभी सुना डिप्रीशिएशन पे किया आपने? आपने जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, कार खरीदा है, उसका डिप्रीशिएशन आपने किसी और को पे किया? नहीं। मतलब ये अमाउंट आप पे तो नहीं करते, तो होता क्या है, depreciation is basically an internal source of financing, my dear. Typically it is called as a non-cash expenditure. आप बोलेंगे ये क्या है, depreciation provide क्यों करते हैं? The provision of depreciation is done for purchasing a new fixed asset when existing fixed asset becomes outdated or out of use. इसलिए depreciation को हम क्या बुलाते हैं, non-cash expenditure हम इसको बुलाते हैं। At the same time depreciation को हम क्या बुलाते हैं, it is an internal source of funding or financing. इसलिए डिप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। हम किसी को देते नहीं, आप चार्ज क्यों करते हैं? फिर दो चीजें, नंबर वन, एक तो आप प्रोविजन कर रहे नया असेट खरीदने के लिए ताकि एग्जिस्टिंग जब भी आपका आउटडेटेड हो, कभी ना कभी होने ही वाला है, और दूसरी बात आपको इनकम टैक्स बेनिफिट लेने हैं, तो आपने जो भी असेट खरीदे उस पर डिप्रीशिएशन माइनस करना पड़ेगा, उस पर डिप्रीशिएशन माइनस करेंगे तो आपका टैक्स कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डिप्रीशिएशन इज चार्ज, but do remember depreciation is not a normal expenditure, it is a non-cash expenditure, like reduction in goodwill or goodwill written off जिसको हम बुलाते हैं। amortization is nothing but reduction in the value of intangible assets, my dear, or reduction in the value of tangible assets, land and building, plant and machinery, furniture and fixture, motor car is called as depreciation। तो आज मैंने आपको बताया कि depreciation non cash expenditure क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड किया जाता है, पे नहीं किया जाता, और ये इसीलिए P&L के माइनस करते हैं क्योंकि हम टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, और हम एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोविजन ऑफ न्यू परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट व्हेन एग्जिस्टिंग असेट बिकम्स आउटडेटेड। इसलिए डिप्रीशिएशन एक नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं है, कैश एक्सपेंडिचर नहीं है, जैसे कि रेंट है, सैलरीज है, वेजेस है, कमीशन है, एडवर्टाइजिंग है। डिप्रीशिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट और मोटर कार। उसी तरह से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इसका अलग से एक फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं। तो ये देखिए इंडायरेक्ट मेथड प्रॉपर फॉर्मेट दिया है, मैंने अलग से बताने की भी जरूरत नहीं, दे हैव गिवन द कंप्लीट फॉर्मेट। अभी इसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय दिस वन। ये देखिए सबसे पहले आपको दिया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स दैट इज पीबीटी इज गिवन, पीबीटी इज गिवन, अर्निंग बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसको लेना है। उसके साथ हमें नॉन कैश आइटम्स जो है वो सारे ऐड करने हैं, उसको हम बुलाते हैं पॉपुलरली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि डिप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, at the same time amortization of intangible assets, any transfer to any kind of reserve, say general reserve, capital reserve। क्यों? Because reserves are created out of profit, और प्रॉफिट से ही अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए वो नॉन कैश आइटम है। तो एनी काइंड ऑफ रिजर्व इज ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और एनी ऑफ द फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स और टेंजिबल असेट्स, नॉन करंट असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, ये अगर लॉस में बेचे तो वो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल के आता है। और एनी लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ इट। तो एडजस्टमेंट देखिए, पहला डिप्रीशिएशन है, दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट है, तीसरा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एंड इसके बाद आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पे उन्होंने सिर्फ एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किया है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होते हैं बेटा, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस हुआ तो एड बैक होता है और प्रॉफिट हुआ तो माइनस होता है। क्यों? क्योंकि लॉस हुआ तो आपने उसको पहले ही माइनस किया है P&L में, जो नहीं करना चाहिए था, तो अभी उसको प्लस करना है। और जो गलती से आपने प्लस किया, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म असेट्स, उसको हमें माइनस करना है अंडर द हेड ऑफ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो दो चीजें याद रखनी है, पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, उसमें एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दूसरा
लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या क्या आता है फिर से ध्यान से सुनिए। नंबर 1 डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स, नंबर 2 amortization of intangible assets, number 3 any transport to any kind of reserve, maybe general reserve, capital reserve or any other reserve। उसी के साथ any type of dividend paid is a non operating expenses। at the same time any type of dividend paid तो हमने लिया, उसके साथ depreciation लिया, उसके amortization अब लेना है any type of loss on sale of investments and loss on sale of नॉन करंट असेट्स। तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो क्या क्या है, एक डिप्रीशिएशन, तीसरा एनी ट्रांसपोर्ट टू रिजर्व, चौथा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, पांचवा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एनी ऑफ द असेट्स। ये सारे आइटम हमें क्या करने बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल के ऐड करने हैं आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और माइनस क्या करना है, एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर कार, मतलब प्रॉफिट ऑफ नॉन करंट असेट्स और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आइटम हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोल के ऐड किए। उसमें पहला आया डेप्रीशिएशन, दूसरा आया अमोर्टाइजेशन, तीसरा आया एनी ट्रांसफर टू एनी काइंड ऑफ रिजर्व्स, चौथा आया लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स, पांचवा आया लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और छठा आया एनी काइंड ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस। तो ये 6 ऐड करेंगे। लेस क्या करेंगे बेटा जी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस किए जाते हैं, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट असेट्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसको ऐड करना है। अब इनका जो प्लस माइनस करके आएगा दैट इज योर प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये प्रिपरेशन का पार्ट चालू हो गया अभी, और अभी इनडायरेक्ट मेथड ही हमें करना है। तो इनडायरेक्ट मेथड देखिए, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ शुरुआत की और हमने सारे नॉन कैश आइटम उसके साथ एडजस्ट किए। मैंने बताया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करने। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था वी आर गोइंग टू एडजस्ट और वी आर गोइंग टू रिकंसाइल द नेट प्रॉफिट और नेट इनकम टू द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है वो आपने ऑपरेटिंग भी चीजें माइनस की है और नॉन ऑपरेटिंग भी चीजें माइनस की है। आप बताएं, आपको लगेगा कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में फर्क क्या है। जैसे मैंने आपको बोला वेजेस पेड इज ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बट डिप्रीशिएशन इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि बिना वेजेस के लेबर काम नहीं करेगा, बिना उसके प्रोडक्शन नहीं होगा, बिना रॉ मटेरियल खरीदे प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन डिप्रीशिएशन तो ऐसा कुछ आज सच एक्सपेंडिचर है ही नहीं, कैश एक्सपेंडिचर भी नहीं है और मैंडेटरी भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें P&L में तो डिप्रीशिएशन बताना पड़ता है, अमोर्टाइजेशन बताना पड़ता है, ट्रांसफर टू रिजर्व बताना पड़ता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट बताना पड़ता है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारा इनकम स्टेटमेंट में आता है या नहीं आता है? यस आता है। लेकिन ये सारा कैसा है बेटा जी? नॉन ऑपरेटिंग है। तो हमें एडजस्ट करना है नेट इनकम विथ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिकंसाइल करना है। रिकंसिलिएशन के मेथड है, शुरुआत करेंगे हम जो प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट कभी कभार कैसे देते हैं, करंट ईयर का बैलेंस होता है, लास्ट ईयर का बैलेंस होता है। तो CY माइनस LY कर सकते हैं आप, मतलब करंट ईयर प्रॉफिट माइनस लास्ट ईयर प्रॉफिट। उसके साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करने और बचे वाला आपका आएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जब भी वर्किंग कैपिटल की बात होती है, वर्किंग कैपिटल इज माय डियर नथिंग बट CA माइनस CL। अब और एक चीज रखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब फॉर्मेट बोला था तो मैंने बोला आपका शुरुआत होगा ओपनिंग कैश बैलेंस के साथ। ये देखिए यहां पे लिखा है ना, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब उसके साथ आप क्या ऐड करेंगे, तो आप उसके साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो ऐड करेंगे, फाइनेंसिंग ऐड करेंगे, इन्वेस्टिंग ऐड करेंगे और आपका क्लोजिंग आना चाहिए। तो अभी हम पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं ऑपरेटिंग पे। तो ऑपरेटिंग का फोकस करते टाइम हमें पता चला कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऐसे दो मेथड है। हमने इनडायरेक्ट को चुना। इनडायरेक्ट में हमें लेना है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है उसको लेना है, उसके साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करने हैं। वो क्या क्या होते हैं मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया और अभी हम उसका पूरा फॉर्मेट देखेंगे। अब उसके साथ और कुछ चीजें यहां पे आपको बताऊंगा। ये देखिए यहां पे स्टेप्स दिए हैं of accounting period, transfer to account changes to the appropriate area of statement of cash flows।
और आखिरी में यूजेस उन्होंने दिए है। अभी टाइम आ गया कि अपन यहाँ पे इसके एग्जाम्पल सॉल्व करें, बट एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। एक 2-4 स्लाइड्स है, इनको खत्म करके ही चलते हैं बेटा, क्योंकि ये बहुत, वरना फंस जाएंगे आगे चल के। तो मैंने आपको क्या बोला कि हमें और एक चीज ध्यान देनी है, दैट इज, मैंने आपको CA माइनस CL बताया यहां पे, तो मैं आपको आगे ये बताना चाहता हूं। नंबर 1, increase in current asset is decrease in cash. Second, decrease in current asset is increase in cash. तीसरा, increase in current liability is increase in cash and decrease in current liability is decrease in cash. आप बोलेंगे ये क्या है सर? बड़ा आसान है बेटा। करंट लायबिलिटी या करंट असेट, इसका मतलब है वर्किंग कैपिटल। अगर आप देंगे तो मैंने आपको बताया था दैट नॉन करंट असेट्स थोड़ी देर पहले। अब यहां पे बात करें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की। करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? ऑल असेट्स विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वन अकाउंटिंग ईयर आर कॉल्ड एज करंट असेट्स, एंड करंट लायबिलिटी ऑल लायबिलिटीज विच आर फाउंड टू बी पेड विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। तो ये शॉर्ट टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, मिलते कहां पे है? बैलेंस शीट में मिलते हैं। अब शॉर्ट टर्म असेट्स में क्या क्या आता है, करंट असेट्स में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल है ना। ट्रेड रिसीवेबल को हम और क्या बुलाते हैं? डेटर्स। इसी को हम क्या बुलाते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल। इसी को हम क्या बुलाते हैं? बिल्स रिसीवेबल, because these are nothing but the customers to whom goods has been sold on credit basis, money is to be received from them. उसी के साथ और क्या आएगा करंट असेट्स में? स्टॉक और इन्वेंट्री, तीनों फॉर्म में, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, है ना बेटा। तो इसके चेंजेस हमें यहां पे लेने हैं। और कैसे लेने हैं? कोई करंट असेट बढ़ा, कोई भी असेट कब बढ़ता है बेटा? an asset cannot increase unless and until it is purchased. Listen to me, an asset cannot increase unless and until it is purchased, and asset cannot decrease unless and until it is sold, है ना। दूसरा रीजन हो सकता है डिप्रीशिएशन, लेकिन हम तो करंट असेट की बात कर रहे हैं। करंट असेट पे डिप्रीशिएशन होता नहीं, डिप्रीशिएशन होता है फिक्स्ड असेट पे। तो अगर आपका ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने और क्रेडिट में बेचा। मान लीजिए लास्ट ईयर आपका ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस था 2023 में, 2023 में आपका ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस था 2 लाख और अभी हो गया 5 लाख। तो ये 23 का बैलेंस है, ये 24 का बैलेंस है। इसका सीधा साधा मतलब क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स आर इंक्रीजिंग बाय ₹3 लाख, मतलब इंक्रीज इन करंट असेट्स इज डिक्रीज इन कैश। आपने कैश फंसा दिया, व्हाई? बिकॉज अर्लियर यू सोल्ड ऑफ 2 लाख, नाउ यू सोल्ड 5 लाख, अभी आपका कैश और बाहर गया 3 लाख। बोलने का मतलब यह है कि पैसा आ नहीं रहा, पैसा ब्लॉक हो रहा है। So increase in current asset is decrease in cash, no matter which is the current asset. तो फिर वो ट्रेड रिसीवेबल हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, और क्या करंट असेट होते हैं। कैश और बैंक बैलेंस यहां पे नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआती कैश फ्लो की है कैश और बैंक बैलेंस के साथ, और एंड भी होगा कैश और बैंक बैलेंस के साथ। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट फिर से कंसिडर नहीं करना है। तो वर्किंग कैपिटल में कौन से चेंजेस कंसिडर करने हैं स्टूडेंट्स? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो ये इक्वेशन याद रखिए। कोई करंट असेट बढ़ रहा है, फिर ट्रेड रिसीवेबल हो, स्टॉक हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, और कोई भी करंट असेट हो, यूजुअली ये सारे करंट असेट्स है। डेटर्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, स्टॉक इन्वेंट्रीज होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है। कैश एंड बैंक बैलेंस अपन नहीं लेते, मैंने बोला क्यों? क्योंकि उसी के लिए हमने कैश फ्लो बनाया है। और करंट लायबिलिटी में क्या है बेटा जी? तो यहां करंट लायबिलिटी में आएगा आपका ट्रेड क्रेडिटर्स, जिसको हम ट्रेड पेएबल बुलाते हैं, अकाउंट्स पेएबल बुलाते हैं, और उसी के साथ आपका आएगा यहां पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, अक्रूड एक्सपेंसेस, बराबर है ना। ये सारे आपके लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है। उसी के साथ आपका आएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उधर प्रीपेड एक्सपेंसेस आए थे, इधर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। थोड़ा सा आइडिया दे दिया मैंने आपको कि करंट असेट में क्या आएगा और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा। करंट असेट, करंट लायबिलिटी आपने हेड के हिसाब से देखा होगा। ये 4 इक्वेशन ध्यान रखिएगा। An asset cannot increase unless and until it is purchased. It cannot be reduced in terms of current asset unless and until it is realized in cash. डेटर पैसा देगा तो ही कम होगा, स्टॉक आप बेचेंगे तो ही, है ना।
liability cannot increase unless and until more is incurred, मतलब पैसा आ रहा है, आपने और लोन लिया, शॉर्ट टर्म लोन लिया, पहले 2 लाख था, अभी 4 लाख हुआ, मतलब और 2 लाख का लोन लिया, ये तो कैश इनफ्लो हुआ ना, और आपका पहले 4 लाख का लोन था, अभी 0 हुआ। लायबिलिटी कैन नॉट डिक्रीज अनलेस एंड अंटिल इट इज पेड। तो ये 4 इक्वेशन है बेटा। तो लायबिलिटी डिक्रीज नहीं होगी जब तक आप पे नहीं करेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं जब तक आप और नहीं लेंगे, और एसेट जब तक आप उसको खरीदेंगे नहीं, एसेट नहीं घटेगा जब तक आपको पैसे नहीं आएंगे। तो ये 4 याद रखनी है। इंक्रीज इन करंट एसेट इज इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन करंट एसेट इज sorry increase asset is cash, decrease in current asset is increase in cash, increase in current is increase in cash, increase in cash। और ये सारा हमें यहाँ पे ऐड करना है, ये देखिए। तो एडजस्टमेंट फॉर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इन्वेंट्रीज और स्टॉक्स, ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, एंड देन इट इज कॉल्ड एज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फाइनली उसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, और आपका आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। थोड़ा सा फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग बड़ा आसान है, ऑपरेटिंग में थोड़ा टाइम लगता है समझने में, निकालना है। तो सबसे पहले बताना है जो क्वेश्चन में दिया है, या फिर करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर, उसके साथ सारे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करने हैं, फिर आपका आएगा नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके साथ आपको करंट असेट और करंट लायबिलिटी के ये 4 रूल याद रखने हैं। इंक्रीज इन करंट असेट इज डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन करंट असेट इज इंक्रीज इन कैश, और उसी के साथ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज डिक्रीज इन कैश। अब थोड़ा सा इसका बेसिक देखते हैं और सॉल्व करने लगते हैं। तो के हिसाब से लुक एट चेंजेस इन बैलेंस शीट accounts from beginning to end of accounting period, transfer the account changes to the appropriate area of statement of cash flow। अब ये ट्रांसफर करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। तो ये ट्रांसफर करने का तरीका क्या है, थोड़ा मैं आपको यहां पे बोलता हूं। ट्रांसफर करना बड़ा इंटरेस्टिंग और जरूरी बात है। तो ट्रांसफर कैसे करना है, सबसे पहले याद रखिए, जब भी आप ट्रांसफर कर रहे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है दैट विल बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर, आपका जो पी एंड एल है बेटा वो किसका पार्ट है, पी एंड एल जाएगा आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में जाएगा क्या क्या, पी एंड एल, और दूसरा करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। तो ये दोनों जो पार्ट है ये पूरी तरह से रिलेट करेंगे किसके साथ, ये पूरी तरह से रिलेट करेंगे बेटा जी, सिर्फ और सिर्फ आपका जाएगा यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सॉरी ये तो मैंने लिख दिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में क्या क्या जाएगा, तो एक तो पी एंड एल जाएगा, ये बस चेंज कर देता हूं, और दूसरा जाएगा आपका पूरा पी एंड एल, मतलब करंट असेट करंट लायबिलिटी आखिरी में आएंगे। उसके पहले पी एंड एल के जो चेंजेस है जैसे कि नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन्स, और आप लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आप इंक्रीज इन करंट असेट इज डिक्रीज इन कैश, in current asset is increase in cash, increase in current liability is increase in cash, decrease in current liability is decrease in cash। और इसके बाद आएगा नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें आप इंटरेस्ट और टैक्स पेड माइनस करेंगे, और आपका फाइनल आंसर आएगा नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यही हमें करना है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बड़ा आसान है। तो मैं बाइफिकेशन आपको बता रहा था, तो देखिए पूरा पी एंड एल गया और करंट असेट करंट लायबिलिटी ऑपरेशंस में गए। अब बचा क्या, सेकंड में बचा आपका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये दोनों होते हैं बैलेंस शीट में, बराबर है ना। फाइनेंसिंग रहेगा लायबिलिटी साइड में, बराबर है क्या बेटा, फाइनेंसिंग लायबिलिटी में है क्या, यस, व्हाई, बिकॉज इज ओन्ड एंड बोरोड कैपिटल। और इन्वेस्टिंग कहां पे है, ये है आपका नॉन करंट असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, बराबर है क्या, नॉन करंट असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये दोनों मिला के आपके जाएंगे कहां पे, एक इन्वेस्टिंग जाएगा, दूसरा फाइनेंसिंग जाएगा। मतलब बैलेंस शीट पूरी की पूरी लगभग करंट असेट और करंट लायबिलिटी छोड़ के ट्रांसफर की जाती है बेटा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो आपका पी एंड एल उसके साथ बैलेंस शीट के करंट असेट और करंट लायबिलिटी ये कहां पे जाएंगे, ऑल दीज आर गोइंग इनटू योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये फाइनेंशियल टूल है एनालिसिस करने का, तो आपको पी एंड एल
बैलेंस शीट का ही एनालिसिस करने का है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का ही एनालिसिस करना है। मतलब अब बचा क्या, अब बचा है आपका एक तो बैलेंस शीट का असेट और बैलेंस शीट की लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि एंटायर P&L हो गया, शॉर्ट टर्म असेट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ये दोनों मिला के गए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में। तो अब बचा आपका नॉन करंट असेट और इन्वेस्टमेंट जो जाए, नॉन करंट असेट और इन्वेस्टमेंट जाएगा आपका इन्वेस्टिंग में, और जो आपका बैलेंस शीट का पूरा लायबिलिटी है ओन्ड और बोरोड कैपिटल दैट विल गो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से इसको हमें खत्म करना है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये बाइफरकेशन बड़ा जरूरी है कि बैलेंस शीट के कौन से आइटम में जा रहे बेटा, नॉन करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। बैलेंस शीट के कौन से आइटम फाइनेंसिंग में जा रहे, लायबिलिटी के ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल, और बचा क्या बैलेंस शीट का, करंट असेट और करंट लायबिलिटी, ये दोनों जा रहा है ऑपरेटिंग में अलॉन्ग विथ एंटायर इनकम स्टेटमेंट। तो बाइफरकेशन बड़ा क्लियर है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट प्लस बैलेंस शीट का करंट असेट और करंट लायबिलिटी एंटायरली विल गो अंडर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। बचा क्या, बैलेंस शीट का नॉन करंट असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स विल गो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बचा क्या, बैलेंस शीट का लायबिलिटी दैट इज ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल दैट विल गो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये पूरा बाइफरकेशन है, इसको आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो ये बस कैश फ्लो का बेसिक्स है। अभी सम सॉल्व करना चालू करते हैं, ये फॉर्मेट के साथ अपन जाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, सारे सम देखते हैं। सो जस्ट रिलैक्स। यहां पे और क्या दिया है, तो ये हमने देख लिया पूरा का पूरा। यूजेस ऑफ कैश फ्लो, क्या यूज है, टू असेस द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मैनेज कैश फ्लो। जैसे मैंने आपको बोला कि बिजनेस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये कैश फ्लो ही बोलता है। बिजनेस डिविडेंड दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये भी कैश फ्लो ही बोलता है। बिजनेस आने वाले टाइम में कैपिटल असेट खरीद पाने के लिए सक्षम है या नहीं है, कैपेबल है या नहीं है, उसके पास इनफ फंड्स है या नहीं है, ये भी कैश फ्लो ही बोलेगा। बिकॉज दिस इज गोइंग टू शो यू द एंटायर कैश एंड bank balance position in terms of cash and cash equivalent, to assess the ability of a firm to generate cash through its operations, to assess the company's ability to meet obligations and its dividend policy। जो मैंने आपको बोला डिविडेंड का रूल है, डिविडेंड once declared by the company should be paid within 30 days from the date of declaration, to provide information about the effectiveness of a firm to convert revenue to cash। जैसे हम एक रेशियो यहां पे निकालते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस टू नेट रेवेन्यू। बड़ा देखा जाता है कि आपका सेल कितना है, रेवेन्यू कितना है, और उससे कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है ऑपरेशन का। तो ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेशियो है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एस्टिमेट और एंटिसिपेट द कंपनीज नीड फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग, ये कैश फ्लो बनाया जाता है। और आगे इंटरनल यूजेस दिए, आप शॉर्ट टर्म में दैट इज सॉल्वेंसी, और आप डिविडेंड पे कर पाएंगे या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। सो टू असेस लिक्विडिटी, डिटरमाइन इफ शॉर्ट टर्म कैश फ्लो पोजीशन, टू डिटरमाइन डिविडेंड पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूट, टू इंक्रीज और डिक्रीज, एंड टू इवैल्यूएट द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। उसी के साथ लिमिटेशंस भी है कि हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन लेते ही नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट एट ऑल कंसिडर्ड इन कैश फ्लो माय डियर, इट इज नॉट एट ऑल अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट का अपना महत्व है। आपको बॉटम लाइन निकालना है तो इनकम स्टेटमेंट बनाना ही पड़ेगा, P&L बनाना पड़ेगा। कैश फ्लो मतलब इसके यूज इसके लिए है टू सी द कैश पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, दैट वेदर बिजनेस इज एबल टू पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वेदर बिजनेस इज एबल टू पे एंड डिक्लेयर, वेदर बिजनेस इज एबल टू पे और परचेस न्यू फिक्स्ड असेट्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, and it is not a test of financial position, but it is a tool of financial analysis after preparation of P&L and balance sheet, and obviously it is historical in nature, but at the same time you can go for projection of cash flow as well. So these are limitations. Should at minimum cover the following area: cash flow from operating, cash inflow and outflow। तो हमने देखा why cash flow analysis, क्यों, ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो क्यों करना है हमें, तो उन्होंने रीजन दिया, इंपॉर्टेंट एनालिटिकल इन्वेस्टर्स एंड अदर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा। आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे उसको एनालाइज करने के लिए कैश फ्लो एक एनालिटिकल टूल है। फिर आपके वो बैंकर्स हो, क्रेडिटर्स हो,
तो उनको पता चलेगा कि आप अच्छी हालत में है या नहीं है कैश पोजीशन के हिसाब से। फर्म्स एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लोज करंटली एंड इन फ्यूचर, capacity to meet cash obligations right now in short term and long term, firm's future external financing needs in terms of long term, firm's success in productively managing investing activity and effectiveness in implementing financing and investing strategy। ये इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है बेटा कि कैश फ्लो एनालिसिस करना क्यों है। जैसे हमने देखा कि पहले अक्रूवल पे हम करते थे, तो कैश पोजीशन जानना है तो कैश फ्लो बनाना है। डिविडेंड डिक्लेयर कर पाते या नहीं कर पाते तो पहले कैश पोजीशन देखना पड़ेगा। कैश पोजीशन अच्छी है तो डिविडेंड के लिए जाइए, वरना मत जाइए। उसी के साथ आप शॉर्ट टर्म और कैश फ्लो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ऑल दीज आर द रीजंस एंड एट द सेम टाइम एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो। देखिए, जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज प्रेफर्ड मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एक्सेस कैश टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपांशन, रीपेमेंट ऑफ डेट एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है कि हम पे कर पाते या नहीं कर पाते, उसके लिए कैश फ्लो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आउटफ्लो की बात जब आती है, while analyzing cash outflow, analyst should consider necessity of its outflow and how the outflow was financed. Generally, it is best to finance short-term assets with short-term debt and long-term asset with long-term debt or issuance of stock. That is what ideal there. तो ये सारा कैश फ्लो का बेसिक्स हमने दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सम सॉल्व करेंगे और फ्लो कैसे बनता है। So in the next lecture immediately for solving the sums, my dear. Thank you and have a wonderful time.